And that's the principle that every business works on. To ensure you're networking in the wedding also, because you are a realtor, okay? Every person, including your kaka, baba, everybody is a customer, okay? And you have to ensure you present yourself as a realtor. And let's begin with 4 ways of earning income, right? So, who would like to tell me about the first way of earning income? What is the first way? Simple, सबसे simple. George, अभी तक Using तो आपको by heart हो using जाएगा. transactions, Whom did I hear? active transactions. Right, correct. Active transaction, absolutely correct. कल जॉर्ज एक बिल्डर मीटिंग में थे. जॉर्ज कौन से बिल्डर? I was with a builder who is doing some private farmhouses. Okay, what is the name of the builder? It's Ram Ratan. Ram Ratan. Which city? They're doing in a new place called Nagaon. Nogao, right? Yeah. All right. So, George, if I use you as an example, are you okay? Yeah, please. Super. So, we understand that George ने नौगांव में राम रतन डेवलपर्स के साथ डिस्कशन स्टार्ट करी है in terms of closing business. Okay. So, we are at our first way now. यहाँ क्या हुआ? Okay, George decided that he's going to sell farmhouses. The price of the farmhouse, and he's going to sell farmhouse. Okay, let's keep it nominal. The price of the farmhouse is 5 crores. That's the base price. Very important is the base price. Guys, आप understand करते हो ना base price? Base price को हम लोग क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में? Gross commission income या GCI, राइट? तो हमारी बेस प्राइस इसके अंदर थी 5 करोड़. अब व्हाट इज जॉर्ज टेलिंग राम रतन दैट राम रतन सर, मैं अकेला तो काम कर, मेरे पास EXP के 200 एजेंट और 89,000 एजेंट इंडिया के बाहर है, सब मिलके आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि अभी फार्म हाउसेस की डिमांड एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है इंडिया के. तो राम रतन विल डेफिनेटली थिंक, राइट, कि भैया मैं आपको जो 2% कमीशन नॉर्मली एजेंट्स को दे रहा था उससे तो बेटर ऑप्शन दूंगा. नहीं तो जॉर्ज मेरे फार्म हाउसेस ना बेच के गोदरेज के फार्म हाउसेस बेचेगा, क्या उसको 3.5% मिल रहा है. सिंपल. जॉर्ज, करेक्ट मी इफ यू आर रॉन्ग. Yeah, absolutely, Mansi. Right? So George has a stronger power to negotiate commission because he's not just representing himself, he's representing a community of 89,000 agents across 29 countries. Okay. See, when we are talking, you have to know what you are selling. आपको अपनी ब्रांड इमेज पे फोकस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. आप सिर्फ वहां ये जाके नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आई एम जॉर्ज. नो, आई एम अ कम्युनिटी ऑफ 89,000 एजेंट्स अक्रॉस 29 कंट्रीज. I am not going to budge for 2% or 1%. No. I need at least 3.5% minimum in order to do business with you. Or I have different properties where I'm going to make that kind of money and I'll focus on that kind of customers. अगर मैं ये customers को cater कर रहा हूँ, मुझे minimum ये commission चाहिए. You are at a better bargaining power, yes or no? अगर आप इसको as a bargaining power use नहीं कर रहे हो, तो please make these as a note point. That 89,000 agents across 29 countries represent कर रहे हो. You are not a joke. Please use it as your selling point. Is that clear? Guys, आवाज नहीं आ रही है. Unmute का बटन इसीलिए दिया गया है ताकि मुझे Yes. And please, nobody from EXP team, all the agents are going to respond to me today. All right, let's move on. Mansi, Now, yeah. we ask, we try to negotiate, but only thing is the developer asks, so how many are you going to do? How many bookings are you going to do in this month? Or we expect something around 10 to 15 bookings in case if you have such a big number. So how do we respond to that then? Shashank, if you could take up this question. Shashank is here. Yeah, hi. Great. मुझे लगा आज मानसी नहीं बोल रहा है. So guys, good morning first of all. जो ये क्वेश्चन है, I think this is a very common question. So यहाँ पे ना आपको जो आपको लगता है कमिटमेंट आपका है, जो आप लगता है एज अ इंडिविजुअल आप फुलफिल कर सकते. Forget about the company, right? So you should talk about those numbers, and then you can tell that this is my number, and I can again connect my international domestic partners who's gonna work hand in hand with me. Then I can give you a commitment of let's say 10 bookings. ठीक है. सो अगर 5 बुकिंग दे दो डिपेंडिंग ऑन द टिकट साइज, जैसे अभी 5 करोड़ रुपए का एक बात चल रही है टिकट साइज की, तो उसकी 25 करोड़ का सेल हो गया, वहाँ पे वो डेफिनेटली बस करेगा कि हाँ यार ये मेरे को समझ आ रहा है
आई थिंक इट मेक्स सेंस। अगर 25 पे नहीं होगा तो वो बोलेगा चलो चलो 50 करोड़ की सेल करो, आई विल गिव यू 3%। ठीक है, तो जब वो ऐसी बातें बोलता है कि सर ठीक है 50 करोड़ की सेल करो आप 3%, तो देन यू हैव अ काउंटर ऑप्शन ऑल्सो, एंड दिस इज हाउ द नेगोशिएशन हैपन, बिकॉज दिस इज द टाइम यू कैन नेगोशिएट। सो आप बोलोगे सर 3% नहीं, आप ऐसा करो 25%, 25 करोड़ पे मेरे को 3% करो, विच इज अ 1% एक्स्ट्रा, एंड इफ आई हैड 50 करोड़ सो आई विल हिट आई विल ट्राई टू टेक 3.5%। वो बोलेगा 0.5% क्यों एक्स्ट्रा दूं मैं आपको? बोलो सर इतना 50 करोड़ का बेचने में मार्केटिंग भी तो जाएगा, मेरा एफर्ट भी जाएगा, सैलरी भी निकालना होता है। So all these things can be able to justify these things, and it is very simple mathematics. Every developer understand this, and उसको आप सामने से बोलो जैसे मानसी ने बोला कि I'm gonna put my energy in your particular project or selling your project if I am be motivated, and then you can say मैं दूसरे जगह पे मेरे को इतना कमीशन मिल रहा है, I can definitely go and work there. So these are the basic fundamentals to ask for the higher commission. Second, you can also put on the company कि सर कंपनी 25.25% ले जाती है मेरा, तो अगर जो भी आप 2% दे रहे हो उसमें से 25% तो EXP को चला जाएगा, तो मी एज अ एजेंट ऑल्सो नीड टू नॉट गेटिंग द प्रॉपर मनी। सो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको 3% कर दो, सो दैट माई रिजल्टिंग नंबर वुड बी 2.25। सो इस तरीके से भी यू कैन प्ले अराउंड। एक्सक्लूसिव मैंडेट्स के टाइम पे वेन एवर द क्लाइंट आस्क एंड से कि नहीं मार्केट 1% GST कर रहा है, तो वील से कि सर आधा तो कंपनी को चला जाता है EXP को, वी आर इंटरनेशनल कंपनी, है ना, and because company is very strict by their numbers, so at the end of the day मेरे को तो उतना ही मिल रहा है, but since it's a big company we have a huge system to run on, so that is why our cost is a little bit on higher side, but our service is also on the better side. So these are 2-3 objection handling questions which you can actually talk to the developer or the client when it comes to the negotiation on commission. Hope you get the answer. Yeah, sure. Shashank ji, thank you so much. All right, great. Thank you, Shashank, for a fantabulous answer. Are you convinced we can move forward? Yes, please go ahead. Thank you so much for this. So, George ने negotiate किया 3.5% for 5 crores. Okay, this is our GCI. Now what happens is, this is your first way of earning income. तो अभी EXP का invoice बनेगा, और EXP में there are two kind of agents. Okay, one who have a GST. Okay, the second is the agents who are non-GST agents. There are two things. अगर आप EXP में non-GST agent बन तो let's not even discuss further. अगर non-GST agent मतलब क्या? Agents who have not earned more than 20 lakh rupees in one financial year. Okay, so the whole purpose of you being a part of GST is start multiplying your income. That is moving from 5 lakhs to 15 lakhs to 20 lakh plus. अगर ये नहीं है तो प्लीज मत आइए, कोई काम नहीं है अपना। The whole purpose of why Glenn Safford has started EXP is maximize agent revenue, and yes, maximize in a legal and a clerical way, right? So non GST agent मतलब जिस एजेंट ने अपने आप को GST रजिस्टर्ड नहीं, और GST मतलब एजेंट्स जिन्होंने अपने आप को GST रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा EXP का इनवॉइस बनेगा राम रतन के ऊपर आफ्टर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 3.5% डील। नाउ व्हाट हैपेंस फर्दर, इसके ऊपर EXP ही GST लगाएगा, अपना खुद का GST लगाएगा, और इनवॉइस भेजेगा राम रतन को 20,65,000 का। तो अभी ऑटोमेटिकली जॉर्ज के पास कोई चॉइस नहीं है मगर अपना GST लेना। बट दिस इज अ हायर टिकट साइज वी आर टॉकिंग अबाउट, एनी टिकट साइज दैट कम्स इनटू पिक्चर, इफ एनी एजेंट पहला इनवॉइस ये का उस डेवलपर को, दैट इज राम रतन को, और फिर नाउ कम्स व्हाट कम्स इनटू पिक्चर इज वेरी 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 ग्रेट थिंग, दैट इज जॉर्ज's शेयर। जॉर्ज आपके पास ये GST है? I have applied, Mansi. Very good. So George will come into this structure into how much will George take home, guys? अब तक तो बाय हार्ट हो जाएगा जॉर्ज के साथ घर पर 75%. How much is Remax paying currently? अगर आप एक GST एजेंट है तो 20,65,000 का आप अपने साथ घर पर लेके जाएंगे, दैट इज 15,48,750. ओके, पूरा का पूरा कैश फ्लो, सिंपल डिफरेंस है। और अगर आप एक नॉन GST एजेंट है, से फॉर एग्जांपल अभी जॉर्ज ने अप्लाई किया है और उनके पास आया नहीं है, तो आप लेके जाएंगे 75% ऑफ 17,50,000। ये 3,15,000 नहीं, आप GST को ना आप हटाई दो फिलहाल, we'll talk about the numbers, absolute number. right, we'll talk about numbers. I'll just move forward because GST को हटाई दो, GST is a tax, अगर बच गया तो एजेंट का, नहीं बचा तो great, सरकार। fair enough.
So this is how the cash flow will impact, और इतना पैसा आप घर लेके जाएंगे. अब इसमें EXP शेयर कितना बचा? EXP will have a share of 25%. Okay, that is 4,37,500. Fair enough. So this is your first way of income. 75% goes to the agent and 25% remains with EXP. Is that clear? Now let's move to the second way of earning income. We are in a new regime. I would like all of you to focus on the second screen. Mansi, may I ask something? Yeah, sure. Please So, go ahead. whenever we are talking about a brokerage, it means it's the brokerage plus the GST which the builder pays? Yes. So when you talk about the base price, आपका invoice value तो इतना ही रहेगा. 17,50,000 ही रहेगा. जो GST है, that is a component over and above the brokerage price. So, that the builder will pay He to has us? to pay because उसको भी तो GST का benefit मिलता है. Okay. तो जो GST का अमाउंट है, या तो वो हमको बिल करे, और हमको वो बिल करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसके एक्सपेंसेस में से क्लेम करेगा. That's how the chartered accountants work, in setting of the income. GST is a very different topic. So as we discuss, if we complicate today, then थोड़ा सा confusing हो जाएगा, because revenue share 2.0 itself is very complicated. Okay. Is it okay, George? We can connect Yeah, later. yeah. Sure, And sure. I can explain you what GST and how Sure, it works for Mansi. the developer, just for the learning purpose, nothing else. All right, sure. So let's move further to this. Second way क्या है? Second way of earning income is revenue share. अब हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं जब आप EXP में नहीं हो, एक नॉन EXP सिनेरियो कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये नॉन EXP सिनेरियो है. अब नॉन EXP सिनेरियो में क्या होता था? जनरली क्या होता था? एजेंट ए होता था, एजेंट्स होते थे. ठीक है, ए बी, ये BCDEF सारे एजेंट्स होते थे अपने पास. ठीक है, और उन्होंने मिलके कितना 17,50,000 का घर बेचा. इतना उन्होंने कमीशन कमाया राम रतन की प्रॉपर्टी पे ही. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि 5 एजेंट ने मिलके ये घर कमाया, तो दे विल शेयर इट टुडे, डिवाइड बाय 5. ठीक है, और बहुत अच्छी दोस्ती यारी हो गई. 6 महीने तक लगे रहे, 3.5 लाख उन्होंने कमा लिया. ठीक है, सब इसके अंदर. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये हुई एक तो डील नंबर 1. अब डील 2 होती है, और इसमें क्या हुआ ना, एफ और जी ने मिलके ई को इंट्रोड्यूस किया था डी को, और बी और सी डी को इंट्रोड्यूस किया था. लेकिन इसमें ना डी और ई की दोस्ती यारी अच्छी हो गई. एजेंट डी और ई की दोस्ती यारी अच्छी हो गई. उन्होंने ना और एक डील कर ली, दैट इज 20 लाख रुपए का कमीशन कमाया. ओके, डील 2. नाउ टेल मी, क्या डी एंड ई, बी एंड सी के साथ ये रेवेन्यू शेयर करेंगे इन अ नॉर्मल सिनेरियो, नॉन EXP सिनेरियो? नो, राइट? D and E themselves will distribute 10 lakhs amongst each other, and the deal will move on. Okay, this is now gap. The whole introductory part, आज E, F और G ना होते तो क्या होता? ये पिक्चर में ही नहीं आते. So this is what a gap that everyone realize, that पूरी मार्केट नेटवर्किंग की वजह से हो रही है, लेकिन B और C और F को कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है इस चीज का. So ये gap was identified, and that's where revenue share came into picture. And EXP decided that अगर हर agent contribute कर रहा है इस transaction के लिए, then everyone should gain the benefit. And let's move further. How much revenue share will you get? Okay, George, आपको किसने introduce किया? Who's the sponsor of? There was this guy, but he's no more in the system. That's okay. Who was that? All right, Anup. Okay. Now Anup introduced George. We assume that Anup is still in the system. If Anup is not in the system, still I'll explain how it works further. Okay. Now Anup is in the system. Okay. Now just tell me, ये EXP ने 25% अपने पास रखा, जॉर्ज अपने साथ 15 लाख रुपए घर ले. ठीक है, how much is Anup going to earn? 44,37,500 में से. Okay, EXP is going to distribute 50%. That is, out of this money, EXP is going to keep and revenue share. Mansi, sorry to interrupt. There is some confusion. I think it was earlier 3.5%. Yes, this has been improvised by EXP in revenue share 2.0. Oh, so now it's 50% of that. And now I'll explain you. I'll explain you guys in detail. Okay. So what has EXP done in revenue share 2.0? Okay. अभी EXP ने आपको EXP 25% में से 50% अपने पास रखेगा
to pay salaries, to do all the business. बाकी सारा पैसा मतलब EXP क्या कर रहा है 75% प्लस 12.5% पूरा का पूरा EXP शेयर कर रहा है. दैट इज 87.5% is getting distributed by EXP to the agents. 87.5 is whooping. So if you are an agent, EXP shares from 87.5% to 100% of the entire commission back to agent. Tell me one agency globally, एक भी दे दो, एक भी नाम दे दो जो 87.5% से 100% रेवेन्यू शेयर करती है. एक भी नाम दे दो by the end of this meeting. मानसी And then आपने दो चीज और कंसीडर नहीं करी है, वो है इसका शेयर जो नहीं, I'll go further to this. Yeah. Okay. अब अनूप के ऊपर आता है. EXP ने क्या डिसाइड किया, ये ट्रांजैक्शन में से 2,18,000 EXP अपने पास रखेगा ऑपरेशंस के लिए और 2,18,750 एज अ रेवेन्यू शेयर कंट्रीब्यूट करेगा. तो अनूप स्पॉन्सर किया है जॉर्ज को 17.5%. अनूप ना ही राम डज अनूप नो राम रतन? जॉर्ज, डिड अनूप मीट राम रतन? No, Mansi. Right? Has Anup known that George is meeting Ram Ratan? No. But because Anup sponsored, okay, George in the system, that's why Anup is going to make a whooping 38,000 out of this transaction. Good money, bad money. Everybody, good money, bad money. So how does revenue share 2.0? Okay. But how does this 17.5% works out of the 25%? So EXP क्या करता है ना, ये आपके पास EXP का शेयर कितना है? 75%. 25%. Okay. Now EXP अपने शेयर में से 50% अपने पास रखेगा for operational reasons. Okay. That is मतलब 12.5% of the entire 100%. Okay. 12.5% जो रहेगा बचेगा. Okay. That EXP will contribute as revenue share. So how does the whole system works is कि 100% of the GCI, okay, is 17,50,000 in our current example. Okay. इसमें से 75% will go to George. Okay. Okay. EXP is going to only retain 12.5%. अनूप के सामने आपने 17.5% लिखा है ना, so how? नहीं, this I'll explain further. That's what. और ये है revenue share further. That is जिसने जॉर्ज को स्पॉन्सर किया है. Okay. That is उसने वो डिस्ट्रीब्यूट that way. Okay. Now how it works is ये जो शेयर है रेवेन्यू शेयर का, okay, इसमें अनूप होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट चंक. ओके. इसके अंदर ही विल अर्न 17.5%. Okay. Got it? This is Anup. Yeah, fair enough. Got it? Now, a second, I'll save this Excel for all of you guys. Right. So how the whole system works is कि say for example, okay, यहाँ पर हमारे पास ये है जॉर्ज को अनूप ने स्पॉन्सर किया, अनूप को ए ने स्पॉन्सर किया, ए को बी ने, बी को सी ने, डी ने, ई ने. So we have total 7 agents, okay? So everybody will get a percentage of revenue share in the system. And this whole 2,18,750,000 will get distributed here, okay? Anup will keep 17.5% here. अब मेरा screen देख सकते हैं, it will be the middle of the screen. A will get 20%, B will get 12.5%, C will get 7.5%, D will get 5%, E and F. I'll have one more F, sorry. E will get 12.5%, and F will get a whooping 25%. Again, there are further criteria to this whole situation, which I'll explain you guys. So, ये जो Sorry, Mansi, you I'll explain everybody. कितना रेवेन्यू शेयर टारगेट रहा था हमारे पास? हमारे पास रेवेन्यू शेयर टारगेट था 2,18,000. sorry, just for clarity, this ladder basically is going from Anup to F, right? So Right, F is Anup the to original F. sponsor. He sponsored E sponsored D, D to C, C to No. B, B to A. George has been sponsored by Anup. Yes. Anup has been sponsored by A. A Yes. has been sponsored by B, and D to C, D to E, and further. Okay. Yeah. So how come F is getting 25% as compared to 17.5 in the first sponsor? That is the company rule. Company has decided. Okay. There are further rules to it. That is, I'll explain that FLQA requirement also. How does the FLQA requirement work? And why these guys are earning a different level of share. This is level 1, level 2. Okay. How does it work? I'll explain you guys. Is in the terms of FLQA requirement.
Okay, now अभी इसको मैं distribute कर दूं for the moment with everybody and then I'll explain you how the FLQA movement works between tier 4 to further. Okay, now अब यहाँ पर 2,18,750 में से अनूप को मिले 17.5%. ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, गिव मी 1 सेकंड. ए को मिले 43,750, बी को 27,453, सी को मिला, ये थोड़े से नंबर है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट जस्ट I'm giving the absolute numbers that we are earning. So this way, entire 2,18,750 that is earned by the agents get distributed amongst level 1 to level 7. That is A, B, C, D, E, F. ये जो शेयर है, जॉर्ज तो अपना 75% लेकर ही, बाकी जो 25% EXP के पास रहता है, उसमें से भी 12.5%, that is 50% of the commission gets distributed between A to F in the particular ratio as I've explained you guys. Everything is in black and white. विजी आप प्लीज वो स्लाइड सबको चैट में शेयर कर दीजिए where everything is in black and white as explained by Glance Effort. Please share. So is this understood? थोड़ा सा complicated है. You guys might need to go over and over about it. It's not that easy. But EX in simple words 2,18,000 4 लाख रुपए जो EXP शेयर था, से भी EXP ने 2,18,750 फर्दर शेयर किया एज रेवेन्यू शेयर. Now, मानसी, एक बार ना इसमें, सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ. इफ यू कैन जस्ट स्टॉप शेयरिंग, आई विल जस्ट गिव अ लिटिल simplified version of it, right? I'll stop sharing 1 second. So whatever Mansi has explained, there's an Excel which I have prepared, not to be shared again. This is for internal calculation which I have created. If you can just stop sharing your screen, Mansi. 1 second. Shashank, just give me 1 second. I'll stop the middle screen. Yeah. To share? Sorry. Yes, Mansi, I can share it. Everyone, please focus on your middle screen where Shashank's going to share his Excel. Okay, I hope my screen is visible to everyone. Yes, Shashank. आपको दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करूं font size, or is it visible? I think Shashank should increase the font size a little bit. It would be more convenient. Okay. Okay, this is great. So guys, let's just take a number. We have taken an average कि इंडिया में जो productive agents होते हैं ना, so they do on an average 10 transaction in a year. ठीक है, it could be 2 transactions per month, it could be 5 transactions in a quarter, it could be 6 transactions in half yearly or 5 transactions in half yearly. So this is the average number what we have come across, and the National Housing Bank के हिसाब से जो average प्रॉपर्टी का जो प्राइस है आज के टाइम में एक 3 बेडरूम का, दिस इज इन द रेंज ऑफ 1,30 lakh rupees in tier 1 cities, right? And we have taken an average commission of 3% rupees just to sake of the calculation. So the per transaction value is coming out to 3,90,000 rupees. ठीक है. So the annual income, if a active agent, we are calling active agent, अगर वो 10 transaction कर रहा है साल की, so I think this is a fair ask. आप किसी को लगता है जो नंबर कम है तो आप obviously change कर सकते हो, but this is how the business model works, right? So we have come to a number कि अगर एक एजेंट साल में ट्रांजेक्शंस करता है तो he has ended up making 39 lakh rupees or 40 lakh rupees, जो कि हमारा कैपिंग अमाउंट है. ठीक है, so we have kept it in a manner so that it should also, जो भी नंबर आपको लगता है कि ये कैसे रखे हैं, EXP ने कहाँ से करा है, so there's a huge research happened at the back end, and then only will come to the conclusion that what should be the best model for India. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है जी, है ना? और हमें कभी नेक्स्ट स्टेप पे बाद में आते हैं. सबसे पहले जो मानसी ने बताया कि 10 ट्रांजेक्शंस कमीशंस पर एजेंट, तो 39 लाख रुपीस का मोटा मोटा लिया, ट्रांजेक्शन हुआ, एजेंट ने कमाया उसमें से 29.25 लाख विच इज 29,25,000, और EXP को गया 9.75. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जो पहला वे है जो इनकम करने का, दिस इज अ रेवेन्यू स्ट्रीम 1. that is 35%. ठीक है, दूसरा होता है रेवेन्यू स्ट्रीम 2. अभी मानसी इसमें बात करेगी एजेंट इक्विटी प्रोग्राम. सो EXP क्या करता है, जब भी आप पहले ट्रांजेक्शन करते हो आपको 9,500 रुपए के शेयर्स मिलते हैं हर साल. ठीक है सर, थोड़ा सा करेक्शन है. आई थिंक EXP कमीशन शुड बी 9,75,000, नॉट 97,500. वो करेक्शन बिल्कुल सही है आपका. टाइपिंग एरर बस. या, so you are correct. Thank you, Deep. Now coming to the second stream of income, which is the agent equity program, right? छोटा सा amount है पर बहुत powerful है. I am telling you, and if you just see and how this is calculated, this is how it's calculated, right? So अभी मैं फिलहाल के लिए number of agents को 0 कर दे रहा हूँ.
बस जस्ट एज अ इक्विटी, मतलब अगर एक सिंगल एजेंट काम कर रहा है वो कितने पैसे कमाता है EXP से, जब अपनी पहली ट्रांजेक्शन रुपए का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर डाउनलाइन में कोई एजेंट अगर आपके नहीं है, मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, देन अगर आप कैपिंग हिट करते हो, ये जो 40 लाख वाला नंबर है, तो आपको 19,000 रुपए के शेयर्स कंपनी और देती है, तो 28,500 रुपए आपको और आ गए। अभी आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपकी कोई डाउनलाइन नहीं है, आप एक सिंगल एजेंट हो, आप एक सोलो एजेंट हो, राइट। अब आता है रेवेन्यू शेयर वाला कैलकुलेशन, सिंपलर, ये भी सेम उसी पे काम करेगा जब आप अपनी डाउनलाइन बनाएंगे। तो मैं अभी एज्यूम कर जीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेंट्स इन डाउनलाइन अभी मैंने कंसीडर करे हुए हैं, जीरो है। अगर हम आइकन एजेंट की बात करते हैं, अगर आप सीधे ट्रांजेक्शंस करके सीधे 2 करोड़ का रेवेन्यू कर देते हो विद अ मिनिमम ऑफ 10 ट्रांजेक्शंस, तो भी आपको 10 लाख रुपए कंपनी एज अ बिग रिवॉर्ड देती है, जो हमारा एजेंट इक्विटी रिकॉर्ड है, जिसे हम बोलते हैं आइकन एजेंट अवार्ड, है ना। जो अभी शशांक चौहान है, आई थिंक इस साल 2 या 3 एजेंट्स और हो सकते हैं। जॉर्ज इज ऑल्सो इन रेस, राशिद इज ऑल्सो इन रेस। तो आई थिंक दे हैव अ पोटेंशियल, दे कैन माइट हिट भी। और इसको और इजी बना देता हूँ, जैसे आप कैपिंग हिट करते हो उसके बाद में अगर आप कंपनी डॉलर में, मतलब आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जब करोड़ का रेवेन्यू ना हो, बट अगर आप 6 लाख रुपए की एज अ ट्रांजेक्शन फीस दे देते हो कंपनी को, तो भी आप आइकन क्वालिफाई कर जाते हो, राइट। तो 6 लाख रुपीज पोस्ट कैपिंग टू द कंपनी डॉलर इन द फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन फीस, देन ऑल्सो यू कैन हिट द आइकन, ठीक है। तो देर आर 2 क्राइटेरियाज, एंड अगर आप हिट कर जाते हो तो 10 लाख रुपए की कंपनी आपको रिवॉर्ड्स और दे देती है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा अमाउंट दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम 2 करोड़ रुपए कर लेते हैं इसको, रेवेन्यू को, लेट्स से इस ट्रांजेक्शंस को हम बढ़ा देते हैं, या फिर हम कमीशन पर ट्रांजेक्शन बढ़ा देते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ द आइकन अगर आप बनते हो, तो ये तो नॉर्मल हुआ कि अगर जब आप आइकन नहीं बन रहे हो तो यू आर मेकिंग ऑलमोस्ट, इसको मैं जीरो कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर आप आइकन नहीं बन रहे हो और साल के 4 हो, तो आप बना रहे हो 29,53,500 रुपए। ये नंबर आप नोट कर लो, एंड दिस इज अ वेरी गुड इनकम इफ यू आर डूइंग ओनली 10 ट्रांजेक्शन इन अ ईयर। और EXP में जुड़ के अगर 10 ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं है, मतलब मेरा ये मानना है। तो मैं आपको बोलूंगा आप रियल्टर ही नहीं हो अगर 10 ट्रांजेक्शन साल की नहीं कर रहे हो। सो जैसे हर जॉब के लिए एक मिनिमम टारगेट होता है ना, दिस इज द मिनिमम टारगेट यू शुड सेल्फ, ईच वन ऑफ यू शुड डू योर सेल्फ, राइट। कि साल का मेरे को भाई 40 लाख तो कमाना ही कमाना है, जिससे मेरे को 30 लाख रुपए बनेगा, है ना। किसी भी कंपनी में सेल्स की जॉब करोगे, वहां उल्टा होगा, 50 लाख का काम कराएंगे तब जाके आपको 10 लाख मिलेंगे। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सिमिलर जो ब्रोकरेज है फ्रेंचाइजी मॉडल्स वाली, वो आपको देती है 40 to 50% का स्लैब स्टार्टिंग में। इट कैन गो अप टू 60% वंस यू हिट 50। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो EXP इज दी ओनली ब्रोकरेज, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग विद वेरी प्राउड, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी नहीं दे रहा इतना कमीशन आपको। एंड देन इट कम्स टू द रेवेन्यू शेयर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी का? जी क्लियर है। ठीक है ना। अब मैं छोटा सा बस फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आई एम जस्ट चेंजिंग इट, राइट। अभी हम आइकन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप एक कैपिंग एजेंट ही हो, ठीक है, ये नंबर आपको खुद को करने हैं। अब आता है एंगल टीम बनाने का, ठीक है, जब आपकी टीम आती है। तो लेट्स से यू हैव रिक्रूटेड एट योर लेवल 1 2 एजेंट्स, ठीक है। जो मानसी वाली कैलकुलेशन है उसी की इन लाइन है ये, वी हैव कैलकुलेटेड इन अदर वे अराउंड, considering all the bonus revenue share, considering all the criteria per agent. So this is the Excel which I have created. Number are more or less same only, ठीक है। At your level, अभी revenue share 2.0 में क्या था कि अगर आप level 1 पे, let's say for example, she has recruited me, right? And I have recruited 5 more agents. To get the benefit of 5 more agents, I have to at least have 2 FLQAs at my level 1. Then only I will enter the level 2 benefit, ठीक है। बट अभी लेवल रेवेन्यू शेयर 2.0 में क्या करा है, फ्रॉम द डे 1 फॉर योर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल इज ऑलमोस्ट फ्री। तो अगर लेट्स से दीप ने पंकज जी को रिक्रूट किया, पंकज जी ने मुझे रिक्रूट किया, मैंने कोई ट्रांजेक्शन करा, उसका भी एक प्रोपोर्शनेट शेयर पंकज जी को भी जाएगा, दीप को भी जाएगा और मानसी को भी जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गोना वर्क। सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज एंड दिस इज द मोस्ट एजेंट सेंट्रिक चेंज व्हाट कंपनी हैज डन। सेकंड, पहले क्या होता था कि अगर कोई भी वॉइड बनता था, चले गए तो दीप है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो दीप का जो ये अमाउंट है 2%, ये खाली कंपनी को जाता था, इसे बोलते थे वॉइड, कंपनी पोजीशन। और जो आपका कहते थे कि वो ब्रेक हो गया डाउनलाइन एक तरह से, ठीक है, लेवल्स आपके ब्रेक हो गए। जस्ट टू मेक इट मोर प्रॉफिटेबल, तो कंपनी क्या करती है, क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे रिव्यू करती है, और इस वाले अमाउंट को जहां पे कि जो एजेंट छोड़ के चला गया, वो रेवेन्यू शेयर की अर्निंग भी अपलाइन एंड डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो दिस इज द बिगेस्ट चेंज व्हाट कंपनी हैज डन। The second biggest change and why revenue share 2.0 is more rewarding than the revenue share 1.0.
ठीक है. So that's how the calculation happens. So just for the sake of calculation मैं एक छोटी सी example लेता हूँ कि let's say यार आपने first year on an average you have asked 5 agents should join EXP, ठीक है ना. और इसमें भी मैं बोलता हूँ 5 एजेंट्स में भी यहाँ पे हमने एक तरह से एक प्रोडक्टिविटी वाला रेशो बनाया हुआ है, ठीक है. Shashank, sorry to interrupt. Just for clarification, this revenue share 1.75%, 2%. This is out of the total. दिस इज एक्यूमुलेटेड. वो आप उसको जो अभी चार्ट देखा था ना उसको आप डिस्कस मत करो. दिस इज एन एक्यूमुलेटेड, राइट. सो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन. मैं इसे हाइड भी कर सकता हूँ इस अमाउंट. मतलब टोटल आउट ऑफ 100% कमीशन जो नेट ग्रॉस कमीशन है. आप एक तरह से ऐसे यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो जस्ट टू गिव यू जस्ट अ क्लियर पिक्चर कि कहां तक आप बना सकते हो पैसा. दिस इज हाउ द रेगुलेशन इज गोइंग टू कैलकुलेटेड. लेट्स से जो आपने 5 लोग करे उसमें से उन्होंने आगे 2 करे, ठीक है. 2 में से हो सकता है किसी ने 10 करे, क्योंकि होता ही है बिकॉज दिस इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, राइट. एंड एक मैं छोटा सा नंबर लेके चलता हूँ कि लेवल 4 पे लेट्स से 2 आ गया, बट लेवल 4 अनलॉक करने के लिए आपके पास 5 FLQ होने चाहिए. मतलब 5 एजेंट आउट ऑफ दीज 5 और 2 और 10 इज 17. 17 में से 5 एजेंट आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए, तभी आपका लेवल 4 अनलॉक होता है, ठीक है. सिमिलरली जब ये 5 और 2 7 और 2 9 और 10 19 में से जब आपके 10 प्रोडक्टिव होंगे जब आपका लेवल 5 अनलॉक होगा. क्लियर है. सो यहाँ पे लेट्स से कि लेवल 5 पे भी आपने किसी ने एजेंट जोड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी ने 10 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे किसी ने 10 जोड़ा हुआ है, राइट. So this is how the calculation work, and these are the productive agent, guys. Just wanted to repeat जो कि ये मोटा 10 transaction, we are just taking those example only. We are not taking the 10 agent आपने recruit करें, 10 में से अगर 5 ही प्रोजेक्ट प्रोडक्टिव निकले तो हम एक assumption लेके चल रहे हैं कि 50% एजेंट ही काम कर रहे हैं, बाकी 50% बेक, ठीक है. Keeping those numbers in mind, that's how the revenue share is going to calculate यहाँ पे. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं इसका टोटल बता देता हूँ आपको सम. सॉरी. सो बॉस ये नंबर बहुत ज़्यादा है. मैं इसको थोड़ा 0 कर देता हूँ, फिर आपका 0 कर देता हूँ. पहले साल के नंबर सोचते हैं कि जितना आपके हाथ में उतनी बात करते हैं, ठीक है. लेट्स से दिस इज व्हाट द नंबर इज, ठीक है. तो अगर आपकी टीम में 10 और 2 12 लोग हैं जिसमें से 6 लोग ऑलमोस्ट काइंड ऑफ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं 7,41,000 रुपए बना रहे हो एक साल के. दिस इज व्हाट द रेवेन्यू शेयर पावर इज. दिस नंबर विल रेप्लिकेट जैसे जैसे आप नंबर्स अपने एक्चुअली देखेंगे. और ये कहाँ से दिखता है आपको? आप अगर MyXP में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपके कितने डाउनलाइन है, किस डाउनलाइन में ट्रांजैक्शन हो रही है, किससे आपको कितना रेवेन्यू शेयर बन रहा है, एवरीथिंग विल बी कम. सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 30 इज द मैक्सिमम. तो अगर मैं खाली कैलकुलेट जो नंबर्स है इसी तरीके से रख लेते हैं कि जैसे जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से हमारे नंबर आ जाते हैं. एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच, गाइज. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. So this is the earning potential with revenue share. You can make up to 50 lakh rupees in a year. And this is really true because there are some agents who are going to hit this number. I hope this year because they have good productive agents who's going to hit capping and revenue share downline जिसकी भी टीम में है, जैसे भी है. So this is the opportunity जो कि अगर 3 साल का कोई प्लान बना के काम करे and they just focus on building the good revenue, good agents who can be a good productive agents to the company, जो कि साल की 10 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, they can easily make this amount as a passive income, guys. एक दिन में नहीं बनेगा. I am again repeating क्योंकि प्रोडक्टिविटी आने में, टीम बनने में टाइम लगता है. कोई भी बिजनेस है आप उसको ग्रो करते हो तो उसमें टाइम लगता है. तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल यही है कि एक ट्रांजेक्शन एक एजेंट इन अ मंथ. दिस इज द इजीएस्ट वे जो कि ग्लोबली लोग फॉलो करते हैं, ठीक है. दे पुट 80% ऑफ देयर फोकस इन प्रोडक्शन बिकॉज अब तक अगर आप ही प्रोड्यूस के साथ टीम में नहीं आएगा, दे विल नॉट वर्क अंडर यू until unless maybe you are a good trainer, you are a good kind of influencer, तो maybe you can recruit agents, ठीक है. There's one agent कुमार अमित, आप सबको पता है कुमार अमित. So he is making on an average around 12-13 लाख रुपए in the year 3. 3 साल उन्होंने EXP में, तो 12-13 लाख का रेवेन्यू शेयर हो गया है. ईयर 4 में हो सकता है उनका रेवेन्यू 1 लाख का जाए, ठीक है. सो दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस विल रेप्लिकेट एंड इट विल कीप ऑन ग्रोइंग जैसे जैसे टीम बढ़ती रहेगी. जी Sir, I have one doubt. Go ahead. Hello. See, for FLQA agent, if my downline who earns sold 2 units at a time and different customer, one project, and a single transaction cannot hit FLQA, means it has to reach 2 lakhs, right? To become a agent should earn minimum 2 lakhs to become a FLQA. So the revenue is 1.8 plus 1.8, and he sold one project, 2 plots, different customers at a time.
So can that income, both the income put together, it can become FLQA agent or not? करेक्ट. सो अगर दो ट्रांजेक्शन करे, द मोमेंट ही विल क्वालिफाई और जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 2 लाख रुपीज कलेक्टिवली, चाहे वो एक ट्रांजेक्शन से करे चाहे 10 से करे, द मोमेंट द रेवेन्यू बिकम 2 लाख रुपीज, देन ही विल बी FLQA फॉर यू. Okay, got it. ठीक है ना? Okay, I thought one transaction should reach 2 lakhs. Fine, sir. Got. सो इफ इट्स अ कलेक्टिव जो रेवेन्यू शेयर है, एक एजेंट तभी प्रोडक्टिव एजेंट माना जाएगा या कोई भी ट्रांजेक्शन तभी प्रोडक्टिव मानी जाएगी जब वो 2 लाख रुपए का GCI करे मिनिमम. सो दिस इज द बेयर मिनिमम हर एजेंट को करना ही EXP में. ठीक है. सो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. लेट्स से कि आपकी डाउनलाइन में 10 लोग आ गए जिन्होंने 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करा, जो आज टू आंसर योर क्वेश्चन. ठीक है. 10 FLQAs आ गए आपके में. सो मोटा मोटा आपको हर ट्रांजेक्शन पे 19,000 रुपए का एज अ अवार्ड मिलता है, इक्विटी अवार्ड. तो यहाँ से भी आपको सीधे 1,23,510 रुपए की इनकम और हो जाए. आपको EXP के कमीशन से, मैं कह रहा हूँ अगर आप कैपिंग एजेंट है वहां से आप 29 लाख रुपए कमा रहे हो. अगर आपकी डाउनलाइन में 10 एक्टिव एजेंट है जो आपकी इमीडिएट डाउनलाइन में, तो भी आप 1,23,510 रुपए मोटा मोटा साल का वहां से एज अ शेयर्स में अर्न कर रहे हो. प्लस अगर मैं इसको सब कुछ जीरो कर दे रहा हूँ जस्ट फॉर यहाँ पे सेक ऑफ कैलकुलेशन, अगर मैं खाली 10 एजेंट्स की बात कर रहा हूँ तो भी आप यहाँ पे 7,41,000 रुपए मोटा मोटा, एक जो कहते हैं ना एक ब्रॉड नंबर, 7,41,000 रुपीज वहां से आप कमा रहे हो. और ये नंबर बड़े सिंपली मैच करते हैं अगर आप कैलकुलेट करोगे. तो अगर 10 एजेंट्स प्रोडक्टिव हुए, उन्होंने कैपिंग करी, उन्होंने नंबर बनाया, EXP ने टोटल उनसे कितना वैल्यू बनाया, उसका 75% आपको एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा 25% में से 50% का जो 50% है वो ये अमाउंट आ जाता है. सो दिस इज हाउ द नंबर कैलकुलेशन वर्क्स. आई होप दिस इज एबल टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर. और जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर ये दोनों, तो साल का आप आराम से 37,89,000 रुपीज कमा रहे हो. अगर आप आइकन बन जाते हो तो यहाँ पे 10 लाख रुपए और ऐड हो जाते हैं. ठीक है. अगर जैसे ही आप 10 लाख रुपए यहाँ पे ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये नंबर भी आपके ऊपर जाएंगे. तो यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू जाएगा साल का, जस्ट यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, इसको हम कर देते हैं 40 ट्रांजेक्शंस, इसको हम कर देते हैं 50 ट्रांजेक्शंस. ठीक है. 51 पे हिट हो जाएगा. ओके. सो मैं एक assumption से लेके चल रहा हूँ. अगर आप साल के 52 ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं और एक ट्रांजेक्शन का जो अमाउंट है वो 1,30,00,000 ही है, देन यू आर एबल टू हिट द आइकन. एंड जो यहाँ पे आइकन से इनकम है, यहाँ पे आपका जो मिनिमम जाएगा कंपनी को वो जाएगा मैक्सिमम 10 लाख रुपए ओनली. तो एक बार मैं कैलकुलेशन चेंज कर दूंगा यहाँ पे जस्ट फॉर सेक. तो यहाँ पे आपका मोटा मोटा आता है 1.9. सेम आपकी कैपिंग एजेंट, आपके जो एजेंट रिक्रूटेड हैं वो सेम रखे हैं हमने. इक्विटी अवार्ड हमने सेम रखा है अभी आपका 10 लाख रुपए का. सो मोटा मोटा आप जो कमाओगे साल के, वो कमाओगे यहाँ पे 1,92,86,710 रुपीज. So these are some basic numbers guys, just to run around. थोड़ी सी here and there calculation में जाएगा, but just to give you an idea and perspective that this is how the income potential with EXP is. और अगर कोई systematically काम करेगा, I am telling you again in writing, आपको year 1 में एक टारगेट करना है कि मेरे को पहले साल में 40 लाख कमाने हैं, दूसरे साल में मेरे को 3 से 4 एजेंट्स की टीम बना के कम से कम 50 से 60 लाख कमाने, और तीसरे साल में मेरे को आइकन हिट करना है, या दूसरे साल में मेरे को आइकन हिट करना है. तो ऑल द प्रोसेस जो मैंने आपको पहले भी एक आपका गोल सेटिंग एक्सरसाइज दिया था, उसी हिसाब से आप पूरा सेट कर सकते हो. एंड दीज आर द मेजर 4 ways, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल. मानसी, ओवर बैक टू यू if you are there. Yes, Shashank, I think you've covered everything. So you want me to continue or we can move forward? Yeah, so I think there are some questions. Let's take some questions first. Sure, definitely. Yeah. So guys, I hope you are able to see the true potential, and that is one of the reason why EXP is the most rewarding brokerage business model in the world. ठीक है. खाली यहाँ पे नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में people are jumping, चाहे वो UK है चाहे फ्रांस है, because basic fundamentals are same. हर जगह पे क्या है, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वैल्यू करेंसी का प्राइस अलग हो सकता है, बट जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो बिल्कुल सेम है. एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू प्लस फिर एक ट्रांजेक्शन के साथ में उनका कमीशन होता है. एजेंट्स होते हैं, पर एजेंट से जो आप वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इंडियन रुपीस, पाउंड के प्राइसेस में, बट एब्सोल्यूट नंबर्स कंपनी के सेम है. आइकन हिट का कैपिंग करने का तरीका सेम है. मार्केट के डिपेंडेंसी से कैपिंग का प्रोसेस बनाया गया है. एक एवरेज ट्रांजेक्शन प्राइस को लेके किसी भी कंट्री का एक मॉडल को डिफाइन किया गया है. एंड दिस इज हाउ द बिजनेस मॉडल वर्क्स. सो आई होप एवरीवन गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस. किसी का कोई डाउट है इसमें तो आप मेरे को बताइए.
तो मैं आपको बस इतना बताऊंगा कि यस, दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी वेरी ट्रू कि रेवेन्यू शेयर इतना अच्छा हो सकता है, बट आई हैव सीन सम पीपल हु आर मेकिंग अ रेवेन्यू शेयर ऑफ 70, 80, 90,000 rupees in a month in the year 2 itself or year 3 itself. This year they have started making 1.2, 1.1 lakh rupees. So by end of this year, I am assuming they are going to make 15, 18 lakh rupees just from revenue share, because what they are doing, they are consistent in getting the right talent to the team. They are also focusing on growing transactions, right? And if you see, it is very easy to build a passive income with EXP. Not only that, the only company which gives you the reward in terms of equity is EXP Reality. हमें देखा देख काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो ऐसा करने की सोच रहे हैं, बना रहे हैं, प्लान्स कर रहे हैं, बट जितना रोबस्ट मॉडल EXP का, इतना मॉडल किसी का भी नहीं है, ट्रस्ट मी। दूसरी कंपनीज के पास जाओगे, उल्टा है सिनेरियो। वहां पे अगर आप 5 करोड़ रुपए कमा रहे हो 5 साल के अंदर, तो वो आपसे मोटा मोटा 50 लाख रुपए एज अ फ्रेंचाइजी फीस ले लेते हैं। उसके बावजूद आपको एक रॉयल्टी फीस देनी होती है, मार्केटिंग फीस देनी होती है कंपनी को, उनके ब्रांड को लाइसेंसिंग फीस जिसे हम बोलते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल। और यहाँ पे विद EXP यू कैन वर्क एज अ इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, एज अ GST और नॉन GST, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद EXP. So I think these are some of the biggest fundamentals which you need to compare when it comes to the agent attraction or agent retention, or 90% of the people who leaves organization again for two reason. या तो वो पैसे नहीं ज़्यादा बना रहे हैं, पैसे ज़्यादा बना रहे हैं, वो आपकी टीम में है, तो आप EXP में सीधा सा बोल सकते हो कि ठीक है, आप now you can be your own, you don't need any mentorship, so जो भी ट्रांजेक्शन होती है आप खुद से करो, you take your 75% split. तो उससे फायदा क्या होगा, ना तो वो बाहर जा रहा है सिस्टम से, एंड देन ही विल बी अर्निंग रिवॉर्ड, इक्विटी उसकी सब सेव हो जाती है, साथ ही साथ उनको जो रेवेन्यू शेयर का बेनिफिट है, और प्लस दे विल बी ऑन द 100% कैपिंग आल्सो वंस दे हिट कैपिंग अमाउंट. सो एनी क्वेश्चन गाइस, एनीवन हैज रिगार्डिंग द रेवेन्यू शेयर? क्या तरीके हैं अर्न करने के? व्हाट आर द वेज ऑफ growing your business with EXP? Come on guys, I think this is the time. All of you are aware सारी चीज़ से कैसा पैसा बना सकते हो, लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ यू शुड अवेयर अबाउट आवर बिजनेस मॉडल. दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम शशांक जी, इतनी सारी डिटेल में चीज़ें समझ में आई हैं. सो प्रोबेबली वी वुड नीड वन मोर राउंड ऑफ दिस थिंग. या मानसी मैडम कैन एक्सप्लेन अगेन इन डिटेल, दैट विल बी गुड. अदरवाइज फिर नेक्स्ट कभी मीटिंग होगी तो वी वुड लाइक टू once more. So definitely we will take more sessions because it's a little complicated. So Nikki will definitely organize more sessions in the coming weeks. And I always have a session, one session in a month, where I explain in detail. So I would encourage you and your fellow agents who you're planning to recruit also to come and attend those sessions, so you can take a benefit out of it. So Nikki circulates a program that monthly we have one training, which is live training in person, which is taken by me. So please do attend, and we will take a detailed training in a similar fashion at that time also. All right. So एक चीज मैं सबको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ना. So we have Kumar Amit, very famous, right? And the reason why I'm taking his example, so that you should get an idea. And there are some people other like Kumar Amit, शशांक को भी जाता है, मंजुनाथ जी को भी जाता है. But I think जो एजेंट हमारा एक्टिव है हम उनकी बात कर रहे हैं. So those who are working really aggressively, right? And I can tell you, what is the power of consistency, and just to show you like what is the kind of potential of making money within EXP itself. So hope you can see my screen again. Okay. So guys, this is a dashboard for Kumar Amit, and total FLA in his team is 45. On the different level, you can see level 1 they have 23 agents, level 2 10 agents. These are FLAs, not FLQAs, right? So FLQA अगर आप देखोगे तो लेवल 3 तक तो सारा फ्री है, और 4 लेवल पे उनका ऑलरेडी एक FLQA है. सो वो ऑलरेडी लेवल 4 पे एक एजेंट और चाहिए, 4 एजेंट और चाहिए टू अनलॉक द लेवल 4. ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स लाइक. सो इस महीने कितना पैसा आपके पास आने वाला है, क्या आपको लास्ट पेड हुआ है, ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे जाओगे और अर्निंग्स पे क्लिक करोगे, just a second. Yeah, so I'm here at the periodic overview. Just a second. So here you can see, on a month-on-month basis, you can see, which month you will receive what amount. Every month he is getting something or the other, and you can start seeing from the 22nd. 2022 से देखो आप, शुरू जा रहा था 23 में, देन 24 में स्टार्ट बिल्डिंग अप, कभी 15,000, कभी 26,000, कभी 19,000, कभी 30,000, 27,000, राइट, 40,000. Then suddenly you will see, it is keep on increasing. जैसे 2024. Can I add one more thing over here?
करेक्ट। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिख रही है ना आपको, ये वो एडजस्टमेंट है जो एजेंट्स ईएक्सपी छोड़ ही कमीशन आपको उनको ऐड होके आ रहा है। तो द एडजस्टमेंट इज जो एजेंट ईएक्सपी शेयर अमित कुमार को ऐड करके आ रहा है। बिल्कुल। सो लाइक मानसी ने बोला, तो आप देखोगे आपको कलेक्टिवली रेवेन्यू शेयर यहाँ पे, सो यू कैन सी ऑन एन एवरेज यू आर गेटिंग अ रेवेन्यू शेयर ऑफ 16-17,000 इफ यू हैव अ 45 एफएलएज इन योर डाउनलाइन। तो मैं आपको बोल रहा हूँ एफएलक्यूए की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपके जो 3 लेवल्स तक हैं वो ऑलरेडी अनलॉक्ड है। And if I just collectively see now, so his income for the last year was, close to 10 lakh rupees, right? And just from the revenue share. And the reason why I'm showing you this, so that, you should be aware that these are the potential of working with EXP, and that is why it makes 100% sense that, people can do the revenue. बट अभी मैं फिर से यहाँ पे दोबारा से एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे वही लोग ज्यादा कामयाब हो पाते हैं जो खुद प्रोडक्टिव एजेंट्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप उन एजेंट्स को तभी सपोर्ट कर पाओगे अपने डाउनलाइन वालों को अगर आपको बिजनेस आता हो, सारे हैक्स पता है आपको, सारे सीक्रेट पता है, ठीक है? कई बार क्या होता है ना, जब आपकी टीम में उसकी पहली ट्रांजेक्शन में या दूसरी ट्रांजेक्शन में आपको हेल्प करना पड़ेगा, बीइंग अ लीडर, एंड दिस इज व्हाई द टीम इज वर्किंग विद यू, है ना? उनकी लॉयल्टी अपनी टीम में ग्रो करने के लिए, बिकॉज नॉट एवरीवन इज परफेक्ट। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग योर टीम, जब अब जैसे आज से मैं बात करता हूँ, जॉर्ज ने एक ट्रांजेक्शन कर दी, कल को उसको दोबारा से 10 ट्रांजेक्शन और करनी है, तो व्हाट ही विल डू once you close 10 transactions, मतलब this is again मैंने एक अटेंड किया था सेशन यूएस का, सो आप टीम बनाने के फोकस तक आप 10 ट्रांजेक्शन खुद ना कर लो, क्योंकि जब तक आप 10 ट्रांजेक्शन करोगे तभी आपको सारी इफ एंड बर्ड्स बिजनेस की समझ आएंगी मोस्ट लाइकली, और उसके बाद में यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन टीम। आपके पास एक सर्वाइवल होगा, टीम को बिल्ड करने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक एफर्ट चाहिए, एक टाइम चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तभी आप यू विल बी एबल टू सी, यू विल बिकम सक्सेसफुल। सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, Kumar Amit, obviously he is making money from the training, but in addition to that he is putting at least 1, 2, 3 hours in a month just to give some business to EXP also, and from there whatever the revenue he is generating, it's an additional income। जो वो मेहनत कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग से वो तो उनके पास जा ही रहा है, प्लस साथ के साथ इसमें आपका रेवेन्यू शेयर भी जा रहा है। सो आई थिंक दिस इज हाउ द कैलकुलेशन एंड एवरीथिंग वर्क्स, एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल ऑफ वर्किंग विद EXP। सबको समझ आ गया है? किसी का कोई क्वेश्चन इस पे, रेवेन्यू शेयर पे, कमीशन पे? जितने लोगों को क्वेश्चन लगता है कि EXP 25% लेके जाता है, सर EXP 25% नहीं लेके जाता है, हम लोग कंपनी चला रहे हैं, हमें पता है EXP खाली 5% लेके जाता है, 5% में वो सब कुछ कर रहा है। Even I received profit sharing this year now. बिल्कुल सर, देखिए वो तो डिपेंड करता है ना, जितने लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, वो प्रोडक्टिव होते जा रहे हैं, then you will definitely get the revenue share. Deep, you have received some funds as well. Yeah, I think in the room you can say in the chat, अगर सब लोगों ने, I think सबने Yes. देखा है। मंजुनाथ सर, if you are there, I remember having a discussion, मंजुनाथ जी asked us कि I think टीम से उनके पास मैसेज गया था कि सर you are receiving this amount 20,000, 28,000, yeah. So you can, I think you can share. Yeah. I have a poor network. Hello. No, I'm saying, sir, how much revenue share you have made tentatively, Tentatively, more than 1.2 lakhs. right? And anyone else, Deep? Yeah, it was somewhere around 45 or 50,000. Okay. Anyone else who received the revenue share so far? No matter whether it's 1,000 rupees, 8,000 rupees, 500 rupees. Yeah, Can I take a few seconds? Yeah, please go ahead. Yeah, adding FLAs is one thing, but adding the quality FLAs is the main criteria that we need to focus here on. That is very, very important. Everybody can become agent, but doing consistently is the challenge, and that we need to support as a team to come up to that level. So we need to be very careful in choosing the right type of agents. Then only we will be able to earn revenue share. Yeah, I have earned almost 62,000 as of now from one downline. That's Mr. Ravi Kumar. In one sale, he became FLQA, and I have earned my revenue share around 40,000 rupees. Very nice. And Shashank Chauhan also, for a fact, like he must have earned 3-4 lakh rupees in revenue share, because his team members are also productive. I have received a revenue share of close to 2 lakh rupees, and this happened in 2024 itself. So I think there are some agents who have selected me as a sponsor in my level 3 or level 4, I don't know. But because of level 1, 2 and 3, this revenue share 2.0 opens up. I don't know, I have not sponsored anyone directly.
बट अगर किसी ने मेरे को सेलेक्ट करा होगा स्पॉन्सर, वो लेवल 2 या लेवल 3 पे, तो वहाँ से आई गोट सम 30,000 रुपीज़ वंस, आई थिंक समटाइम्स आई गोट 14,000, समटाइम्स आई रिसीव 1,000 रुपीज़. सो आई इवन डोंट नो, आई मीन दिस इज एडिशनल इनकम जिन्होंने मेरे को सेलेक्ट किया एज अ रेवेन्यू शेयर, एंड आई ऑलवेज थैंकफुल टू देम, बिकॉज किसी को भी बुरा नहीं लगता है. और मैं इसको ऐसा देखता हूँ, पैसिव इनकम इज समथिंग दैट यू नो हु कैन टेक केयर एडिशनल बर्डन ऑफ यू. चाहे वो आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन 1 साल का 1,000 रुपये अगर आपको मिला, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ. रुपये कमा तो हो सकता है कि मेरा 1 महीने का मेरा पॉकेट एक्सपेंस निकल गया, राइट, या मेरी गाड़ी का फ्यूल एक्सपेंस निकल गया, या मेरी गाड़ी की EMI निकल गई. आई टेक इट दैट वे, ठीक है, कि अगर नहीं होता मिल रहा है मैं उसमें पे करता. तो अगर मैं 2 लाख रुपए कमाए, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़ में से अगर मैं टैक्स भी हटा दूँ अपना, तो जो मेरे पास रिजल्टिंग अमाउंट बचा वो एटलीस्ट एक एडिशनल इनकम हो गया. अगर मेरे बच्चे होते तो वो शायद 1.5 लाख रुपए उनकी बच्चों की एजुकेशन में काम आ जाए, या फिर अगर वो मैं 1.5 लाख रुपए की SIP करूँ विद 10% इंक्रीज, तो 8 साल डबल हो जाएंगे. सो कैसे भी आप उसको देख सकते हो गाइज, बट आई फील अ रेवेन्यू शेयर इज अ वेरी पावरफुल टूल. I personally don't recruit myself. I always support agents to get the agents, and this is what my job, and I think the whole team do the same. Until unless कोई आ ही जाता है डायरेक्टली बोलता है कि नहीं सर हमें तो आप ही को सेलेक्ट करना है, तो obviously if they don't have any sponsor they can select us. So I hope this is clear to each one of you, and this is very powerful. जो लोग आज 60,000 कमा रहे हैं, कोशिश करो उसको 6 लाख तक, जो उसको 20 लाख तक लेके जाने की कोशिश करो, and then you will see the power also, and this is possible. बट टाइम लगता है कोई भी बिजनेस को सेट करने में, एंड ऑब्वियसली एफर्ट लगता है. लाइक मंजुनाथ, यू नीड टू वर्क ऑन द राइट एजेंट्स, ब्रिंगिंग ऑन द टीम. सेकंड, यू नीड टू हेल्प देम, सपोर्ट देम टू ग्रो एंड डू बिजनेस. वो लोग नए हैं, आप EXP में पुराने हो, तो इट इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल गाइड देम इनिशियल डेज. एक बार उनको समझ में आ गया, सारी ट्रेनिंग्स उन्होंने अटेंड कर ली, पहली ट्रांजेक्शन कर ली, देन दे काइंड ऑफ यूज्ड टू ऑफ द सिस्टम. एनी अदर क्वेश्चन फॉर एनीवन गाइज before we end the session today? So, more clarification on the FLQA. So, if it is down lane, 3-4 payments put together, you cost 1 lakh. Sorry, 2 lakhs. You will also become FLQA, right? Yes. Thanks. Any other question anyone has from EXP team also? If anyone has any question regarding the FLQA sponsorship, because I'm sure you guys interacting with agents. If there's any doubt in your mind, great. So guys, I hope you find this session very useful, and you can maybe made some notes out of it, and you can actually work the same way what we have done. You need to set your targets, goals, and work towards it. goals को तब तक अचीव नहीं कर पाओगे. मैं हर बार रिपीट करता हूँ, आई थिंक लास्ट ईयर भी हमने बात करी थी, जनवरी में भी हमने लास्ट मंथ आपको एक गोल सेटिंग एक्सरसाइज दी थी. आप ट्रस्ट मी, जब तक गोल लिखोगे नहीं अपने सामने एक पेपर पे, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दैट नंबर. लोग इसको मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, लोग इसको माइंड ट्रेनिंग भी बोलते हैं, बट मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो वो हमेशा रखी रहती है, लिखी रहती है, वो हटती नहीं है ना. तो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, सेट योर टारगेट, सेट योर गोल्स फॉर द ईयर, एंड देन अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट इट. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू गाइस. Thanks a lot, Shashank. Thank you, guys. Thank you, Shashank. Thank you, Mansi. Thank you, Mansi. Thank you so much. Thank you, Sashank. Thank you, everyone. Thank you so much for being there. Thank you. Thank you, everyone.